Hello, Namaskar, and welcome to the CAA Show. CAA, as all of you know, is Conversations and Analysis, and my name is Juggi Bhasin. तो जब हम ये शब्द सुनते हैं अन्नदाता तो आपके दिमाग में क्या जाता है? हम सब सोचते हैं वी थिंक अबाउट अ पर्सन हु इज अगेंस्ट ऑल odds making a living, sowing his crops, producing wheat, paddy, other crops, and basically a person who is actually feeding the nation. Yes, we all think about that. Now, welcome to Farmers Protest 2.0 जो हमारे सो कॉल्ड अन्नदाता दिल्ली की तरफ आ रहे हैं. और जब हम इनको देखते हैं, when we see all of them on television screens, what are we seeing? We are seeing a 2024 version of a Mad Max movie. Yes, I'm not joking. What I'm saying is, I'm saying this with all sincerity. And some of you who might not be aware, Mad Max movies की ये Mad Max क्या चीज़ है? So Mad Max were this Australian franchise movies which were made, जिसमें कि एक dystopian future है और उसके अंदर जो लोग बचे हुए हैं, मतलब in a post-nuclear world, they are traveling in a convoy of jeeps and trucks and all kinds of vehicles which are reconverted to withstand all the harshness of the post-nuclear world. So it's something so similar when you're seeing this entire convoy heading towards Delhi. It seems like an unspooling of a Mad Max movie. ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, BMW गाड़ियां आ रही हैं, फॉर्च्यूनर्स आ रही हैं, बड़े बड़े व्हीकल्स आ रहे हैं, एंड लॉट ऑफ दीज ट्रैक्टर्स हैव बीन रिकन्वर्टेड. उनके ऊपर केजेस लगाए हुए हैं, बुलडोजर्स टाइप एपरेटर्स लगाए हुए हैं कि वो जो रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बैरिकेड्स आएंगे, उनको तोड़ दिया जाएगा. एंड दिस पीपल विद कमिंग 6 months of provisions, this entire cavalcade is heading towards a Mad Max kind of cavalcade is heading towards Delhi. एंड जो ये सो कॉल्ड जो हमारे अन्नदाता दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, इन्होंने क्या पहना हुआ है? आपको क्या लगता है कि वो कोई पुराने ज़माने का कुर्ता पजामा है, कुछ ऐसी कोई उन्होंने वस्त्र पहनी है? जी नहीं, दे आर वेयरिंग लीवाइस, pants and jeans, they are wearing sneakers, they are wearing Nike shoes, they have the latest of jackets and everything they are wearing. They are also, a lot of them have gas masks with them. I don't know where they purchased these gas masks from, but a lot of them have gas masks. एंड द लेटेस्ट इज कई लोगों ने अब कोलगेट टूथपेस्ट अपने चेहरे पर लगाना शुरू कर दिया बिकॉज दे थिंक दैट kind of helps them in moving in a tear gas situation, so they're putting Colgate on their faces. So you name it, every kind of apparatus, every kind of device, every kind of facility, it's there with these, within quotes, annadatas who are moving towards Delhi. तो सच में लगता यह है कि हम इस पे हंसें या रोएं या दुख मनाएं या क्या करें. But such is the fate of our country that this is the new protest which we have to bear. We have to see with our own eyes the kind of people who are coming towards Delhi. And it raises a lot of fundamental questions. That what is this protest all about? Is it about MSP, or is it about the implementation of the MSP law, or is it about something else altogether? And these are the questions which I'm going to raise in this particular episode of the CAA show. And let's see if we can get some answers of these perplexing, interesting, enigmatic, but also infuriating questions. तो पहला क्वेश्चन जो मैं आप सबके सामने रखूंगा कि दैट व्हाट इज द एज एंड द एरा वी आर लिविंग इन. ओके, आर वी लिविंग इन द 60s एंड द 70s? और 60s एंड 70s में जहाँ तक मुझे याद आता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द 1965 वॉर, शास्त्री जी ने एक स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान. और सही था वो स्लोगन उस टाइम का, बिकॉज एट दैट टाइम थिंग्स आर नॉट वेरी गुड इन द कंट्री. Agricultural production was very poor, famines and all that they were rampant all over the country, and the contribution of the farmer was very significant, and we were on the cusp of the Green Revolution. So the contribution of the farmer was very, very critical and important. And of course,
the contribution of our soldiers, of our jawans. That was also absolutely, we won the 65 war because of them. So that slogan was apt, was absolutely timely and needed. But that was in the 60s, 70s also. और वो पिछली शताब्दी का स्लोगन था. अब उस पिछली शताब्दी के स्लोगन को अगर आप इस 21st सेंचुरी में नया भारत में आप ले आते हैं और ट्रांसप्लांट कर रहे हैं एंड यू वांट कि वही हम रेवरेंस रखें, वही हम सिस्टम चलाएं, वही जो पहले के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वही रखें, तो मेरा प्रश्न ये है कि कहां तक ये वाजिफ है, कहां तक इसको हम निभा सकते हैं. That's the question we need to ask. What these farmers or this, I call it the VIP constituency of farmers, which is heading towards Delhi, this VIP constituency, ये लोग क्या चाहते हैं? What is their main demand? I will explain to you in a simple line. They basically want that agriculture should be nationalized, and this particular constituency, this VIP constituency of farmers should lead capitalist lives. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि पूरे एग्रीकल्चर को आप नेशनलाइज कर दीजिए, उसको आप 50-60, बल्कि 50-60 भी मैं कहूँगा टेक इट, दे वांट टू टेक इट बैक टू सम काइंड ऑफ अ स्टालिनिस्ट, जैसे पुराना सोवियत यूनियन होता था, कलेक्टिव फार्म्स होते थे उस एरा में. बट these particular people at the same time they want to lead capitalist lives. They want to have a capitalist lifestyle. तो दो कॉन्ट्रोडिक्टरी चीजें हैं, मगर दे वांट बोथ दीज थिंग्स एट द सेम टाइम. एंड देयरफॉर आई एम सेइंग दैट दिस एंटायर मूवमेंट, दिस एंटायर प्रोटेस्ट इज अ टोटल बिग शैम. पहली बात तो जो फर्स्ट प्रोटेस्ट हुआ था 1.0, उसके अंदर जब गवर्नमेंट बकल्ड अंडर एंड अग्रीड टू स्क्रैप द फार्म लॉस, विच वाज द बिगेस्ट मिस्टेक. और जो उनका एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि आपने तो कहा था कि आप फार्म इनकम्स हमारी डबल कर दोगे, मगर वो नहीं हुई, तो होती कैसे? जब फार्म लॉस आपने इंप्लीमेंट ही नहीं होने दिए तो फार्म इनकम कहां से डबल होती? तो वो नहीं हुआ, वो भी गलत निर्णय था. We buckled under, we gave them their way. The farm laws were repealed in the first time. They should not have been repealed because that was the only way to not only save agriculture but to resuscitate agriculture, take it out literally from the ICU and give it a life. That was the only way, but we buckled under pressure, which is a wrong decision in my opinion. और अब in this new protest 2.0 मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इस सरकार के लोग कि इन लोगों से क्या बात कर रहे हैं. आप क्या बात करेंगे? Do we have the capability, do we have the wherewithal to agree to their demands? And look at the demands, I want to talk about that. It is shocking. These people, this VIP constituency of farmers, which is not even 1 or 2% of the total farmers in the country, by the way, because you find it's always these Punjab and a section of some Haryana farmers which are protesting. You never find farmers from Madhya Pradesh protesting, or from Bengal, or from, for that matter, from Kerala or other states also. It's only these people who are protesting all the time. आप ये देखिए कि इनको क्या नहीं मिला हुआ है, क्या नहीं है इनके पास, और इनको क्या और सब कुछ चाहिए. लेट्स टॉक अबाउट दैट. फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर. मैं बहुत सिंपल टर्म्स में ये समझा रहा हूं. आई एम नॉट going to go into great economic arguments and all that. I'm going to explain the entire thing in a very simple manner. Free electricity, free water, subsidized fertilizers. जो मेन इंग्रेडिएंट्स फार्मिंग के होते हैं वो इन सबको लिटरली से कहते हैं फ्री में मिले हुए हैं, लिटरली फ्री में मिले हुए हैं. ठीक है. उसके ऊपर से आपने उनको एमएसपी दिया हुआ है. ओके. पहली बात तो इफ यू आस्क मी, I personally think there should be no concept of MSP, because there should be what is called a demand and supply situation that should rule the market like it rules all other sectors in our economy. And जैसे मैंने आपको समझाया कि अन्नदाता जो 60s के थे और जो आज के अन्नदाता हैं, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. कोई एक्चुअली मेल है ही नहीं उन दो चीज़ों के अंदर. They were doing a different role. This is a totally different section of people. और वो भी मैं समझाऊंगा कि ये टोटल वीआईपी सेक्शन क्यों बन चुका है. आई विल एक्सप्लेन दैट अ लिटिल लेटर. बट व्हाट द शॉर्ट पॉइंट व्हिच आई एम मेकिंग इज दैट दिस वीआईपी कंस्टिट्यूएंसी जो हमारे देश में
विच इज लीडिंग ऑल दीज प्रोटेस्ट, इनको क्या क्या नहीं मिला हुआ है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, एज आई सेड, फर्टिलाइजर्स, एमएसपी मिला हुआ है, और एमएसपी नहीं होना चाहिए, लेट द मार्केट सिचुएशन प्रिवेल, मगर उसको हम फॉलो नहीं करते। ऑन टॉप ऑफ दैट दे वांट टू लीगलाइज एमएसपी, और लीगलाइज एमएसपी का लॉ अगर आप बना के ले आएंगे, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है इनको देनी पड़ेगी, चाहे hundreds, there could be hundreds of variables in a particular year. कभी क्रॉप फेल हो सकता है, there can be a bumper crop. Sometimes अगर आप imports कर रहे हैं तो वहाँ से import situation can impact on the MSP. How can you create a law and assure a guaranteed return year after year after year? And I bet you my bottom dollar, as we say, कि अगर आपने ये इनकी बात मान ली in terms of a law, the next step will be, then they will say that we will fix, our unions will fix the rate of the MSP. That will be, I promise you, will be the next step. और वो अगर आप नहीं मांगेंगे तो फिर वो agitation number 3 उसको आप शुरू कर देंगे। ये तो it doesn't stop, it will never stop, because ये एक ऐसा अंधा कुआं है जिसमें आप जितना भी आप फेंकते जाएं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसका बॉटम कहां पर है और जो आपने फेंका है वो कहां गया है। इट विल नेवर एवर दी, you know, that you can never know to what extent all the goodies you might keep giving को कहाँ जाएंगे, उसका क्या उसका फर्क पड़ रहा है, you will never know about that. So the demands will never stop. It is an absolutely unreasonable law, and on top of that, this VIP constituency of farmers, they also want a pension. It sounds impossible, but what I'm saying is true. They want a pension for themselves, 10,000 rupees every month. Well, for doing what? And this, and now I'll come and tell you why I call it a VIP constituency. ये VIP constituency इसलिए है because actually they're not farmers. They certainly own these large tracts of land, लेकिन ये जो farms हैं, ये पूरी tenanted farming वहाँ चल रही है। फार्म लेबरर्स आपके आते हैं, बिहार से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, और स्टेट से आते हैं, और वहाँ पर फार्मिंग करते हैं। इन लोगों की कोठियाँ हैं, लिटरली कोठियाँ हैं, चंडीगढ़ में हैं, दिल्ली के अंदर हैं, मोहाली, यू नेम इट, all places they have, there's a lot of wealth which is spread around. They have given these farms on contract, और उसमें से जो भी निकलता है वो इनके पास आता है। On top of that, they want more and more goodies, they want pension. What really is baffling and shocking to me is that why is the government of India even prepared to sit down and talk with these people? इनका वोट तो वैसे भी आपके पास नहीं आने वाला, सब जानते हैं। ये वोट तो वैसे भी कुछ पर्टिकुलर ऑपोजिशन ग्रुप्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी कैप्चर करा हुआ है। In fact, there is a theory that they are being propelled or being egged on by those opposition groups. तो वो तो आपको वैसे भी नहीं मिलने वाला, तो आप क्या नेगोशिएट कर रहे हैं उनके साथ? And what is the signal you are sending to the rest of the genuine farming community in the country? कि आप एक वीआईपी कंस्टिट्यूएंसी को पैंडर, उनके जो ख्वाहिशें हैं, उनके जो डिमांड्स हैं, उनके जो सो कॉल्ड मतलब ड्रीम्स हैं, उसको आप पूरा करेंगे एट द कॉस्ट ऑफ 97 to 98% of the farming community in the country. That is the real story. The story is not about agitation or farm protest 2.0. It is really about that जो जिन लोगों की genuine demands हैं, genuine demands क्या है 98% की? They want the old farm laws to come back because that is really going to help them. अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर इंस्टेंस जैसे महाराष्ट्र के अनियन फार्मर्स हैं। अब अनियन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जब बम्पर हार्वेस्ट या जब डिमांड होती है तो दे कैन एक्सपोर्ट इट ऑल्सो, मगर हम इस एमएसपी के चक्कर में और जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो रही है तो हम उस एक्सपोर्ट को कभी कभी हम उसको कर्टेल कर देते हैं। व्हाई? लेट द मार्केट फोर्सेस बी एट प्ले। व्हाई डोंट यू लेट द मार्केट फोर्सेस बी एट प्ले? अगर फार्मिंग आप उसको निभा सकते हैं तो जरूर निभाइए, अगर आप नहीं निभा सकते तो उसको बंद करिए। कोई ये तो है नहीं ना कि एक ठेका दिया हुआ है, जमींदारी है, या फ्यूडल सिस्टम है कि आपका एक ट्रैक्ट ऑफ लैंड है और उसमें अगर आपका प्रोडक्टिव है या नहीं है, मगर आपको कंटिन्यू करना है और गवर्नमेंट आपको सब्सिडी पे सब्सिडी पे सब्सिडी दे ही जाए कि आप उसको चलाते रहिए और आप अपनी कोठी में दिल्ली में बैठे आप दोपहर को आराम से सो रहे हैं और आपकी टेनेंटेड फार्मिंग जो चल रही है। What is this
literally this nonsense which is going on. And we have to put an end to this. Why do we have to put an end to this? And that's a question we need to ask, because ये नया भारत है, दिस इज न्यू इंडिया. और ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट कह रही है और हम इसको मानते हैं. वी बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नया भारत. अब नया भारत में आप 50 स्टाइल 40s 50 स्टाइल सोवियत यूनियन और जो 60s में जो हमारे हालात थे उस तरह की फार्मिंग को आप उसको ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते. द टाइम्स हैव चेंज. दिस इज अ न्यू सेंचुरी, दिस इज अ न्यू एरा, दिस इज अ न्यू इंडिया, एंड वी हैव टू टेक कॉग्निसेंस ऑफ दिस. लेकिन हम इसको नहीं ले रहे. हम इनके साथ अभी भी जो जिसे कहते हैं वी बकल डाउन एंड वी स्टार्ट गिविंग देम फ्रीबीज. किस चीज के लिए? कोई डरा रहा है आपको, धमका रहा है, करने दीजिए. जो करना है करने दीजिए, देख लेंगे. डोंट बी ब्रूटल, बट any agitation has to be met in the right responses have to be given. Persuade the courts to take some action against all this. Use your resources in a different manner instead of negotiating. The very fact you're sitting down to negotiate with them shows weakness, and that is why this VIP constituency is getting on top of your heads. And this is what is really going on. दो तीन और पॉइंट्स मैं इस पूरे जो एपिसोड है इसमें मैं और मेंशन करना चाहूंगा, विच आर लिंक्ड विद दिस पर्टिकुलर इशू. ये जो इशू है ये सिर्फ इस वीआईपी कंस्टिट्यूंसी का नहीं है. ये इशू जो है ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है और ना ही ये सिर्फ एमएसपी का इशू है. ये इशू एक्चुअली दिस इशू इज अबाउट ऑल द पीपल हु आर गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस एजिटेशन. और ये लोग कौन है मैं आपको बताता हूं. ये लोग हमारे डेली वेजर्स हैं, जो फ्रूट बेचते हैं, जो सब्जी बेचते हैं. टिकरी बॉर्डर के आसपास जो लोग हैं जहां पर ये लोग अपना डेरा जमाना चाहते हैं, या दिल्ली में घुस के अगर ये डेरा जमाना चाहते हैं, क्योंकि जब ये डेरा जमाएंगे अपने टेंट, दे विल पिच अप देयर टेंट्स, और जब ये अपने नाटकबाजी अपनी पूरी शुरू कर देंगे तो वहां पर तो जितना कॉमर्स है वो तो खत्म हो गया ना बिल्कुल. तो वहां पर जो बेचारा हर रोज अपनी डेली वेजर अपने जो पैसे बनाता है, अपनी सब्जी बेचता है, फ्रूट बेचता है, उसका तो काम धंधा खत्म हो गया वहां पर. ठीक है, जो ऑटो रिक्शा वाला है वो चलाता है, वो कहां चलाएगा? सड़क तो आपने जाम करके रखती पूरी, तो वो भी उसका धंधा गया. किनारे की जो दुकानें हैं वो ठीक है, इन लोगों को थोड़ा बहुत बेच देंगे, मगर उनकी तो जो डेली सेल होती है वो तो आसपास के नेबरहुड्स, तो वहां पर कौन आएगा? वहां पर फिर उनकी स्पीचेस सुनने तो लोग ये तो ना कि सवेरे रात को आते रहेंगे, शाम को आते रहेंगे, तो वो सब खत्म हो जाएगा. तो उनका पूरा जिसे कहती है रोटी पानी काम धंधा सब खत्म हो जाएगा. And then let's not forget the commerce. These are on the highways. These are the main arterial highways connecting our country. Once they are blocked, and we know more than 5 to 10,000 crores was lost in the last agitation. I don't have the exact figure with me, but it was a really high figure. Do we want to repeat that in this agitation number 2? तो ये सारे लोग जो हैं, all our lives, और लेट्स नॉट फॉरगेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिन लोगों को मेडिकल एड की जरूरत है, एम्बुलेंसेस के, वो कहां जाएंगे? आपको इलाज के लिए जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल के लिए जाना है, आप कैसे जाएंगे? मतलब सब रुक गया वहां पर, सब कुछ जिसे कहते हैं एक तरह से जाम हो गया. ऑल बिकॉज वीआईपी कंस्टिट्यूएंसी, दे वांट फ्रीबीज, दे वांट बेनिफिट्स फॉर देमसेल्व्स, एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री कैन बी डैम्ड एज फार एज दे आर कंसर्न. तो इशू ये है, these are the people who really matter. It's not this 1% of people, and we all know the lifestyles they are leading. We all know that. आप इन लोगों से नेगोशिएट करें, आप इन लोगों से बात करें, कोई जरूरत नहीं है बात करने की. Why should we talk to them? Because there are the 98% people who you should be considering their उनके बारे में सोचिए कि उनकी लाइफ किस तरीके से मतलब उथल पुथल हो जाएगी. उनकी लाइफ के अंदर कितना बड़ा जिसे कहते हैं कि पूरा एक स्टॉर्म आ जाएगा. एंड इट लास्टेड, द फर्स्ट एजिटेशन लास्टेड फॉर नियरली अ ईयर. देयर लाइव्स केम टू अ स्टैंड स्टिल, ऑल दोस पीपल. सो दिस आई थिंक इज द मेन इशू वी नीड टू कंसिडर. और जब बात करते हैं अन्नदाता की, इस स्लोगन को भी चलिए बात कर लेते हैं, जय जवान जय किसान. तो मुझे एक चीज़ बताइए कि हमारे देश के अंदर सिर्फ जय जवान और जय किसान है? हमारे जो जवान हैं, हमारे जो आर्मी है, हमारी एयरफोर्स है, नेवी है, इट्स अ प्रोफेशनल आर्मी. दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. दे आर नॉट एजिटेटिंग ऑन द स्ट्रीट्स.
हमारे जो किसान हैं 98% वो बेचारे अपना आराम से काम कर रहे हैं, अपना प्रोड्यूस करते हैं, बेचते हैं और उनकी लाइफ चल रही है। सिर्फ 1-2% लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। मगर मेरा प्रश्न ये है कि अगर आप जय किसान और अन्नदाता बोलते रहते हैं, जैसे कि हमारे कई ऑपोजिशन के लोग बोलते रहते हैं, तो फिर आप जय आईटी वर्कर बोलिए, जय डॉक्टर भी बोलिए, जय इंजीनियर भी बोलिए, क्योंकि वो लोग भी तो देश में पूरा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और कल हो सकता है वो भी खड़े होकर कहें कि हमें भी एक मिनिमम सपोर्ट चाहिए अपने लिए, जो हम काम धंधा करते हैं उससे कम हम बात नहीं करेंगे, तो वो भी शुरू हो सकता है एजिटेशन। कहां रुकेगा? दैट्स द क्वेश्चन वी नीड टू आस्क. Is it only about this 1% VIP constituency we should be bothered about? There are hundreds of such segments now in the country who are all contributing to nation building, who are all contributing to the economic progress of the country. Should we not be bothered with them? Why should we only focus on this 1 or 2% VIP constituency? That is the question we need to ask. And finally, I will leave you with this one question. और ये मैं सोच रहा था इस पूरे इशू के बारे में, एंड दिस क्वेश्चन केम टू माई माइंड कि व्हाई इज दिस हैपनिंग अगेन एंड अगेन. और कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, और मैं आपको कॉन्ट्रडिक्शन बताता हूं. यही लोग इनके फोरफादर्स को 1984 के अंदर, वी ऑल नो द ऑपोजिशन ग्रुप्स एंड द ऑपोजिशन पार्टीज, जिन्होंने जो उनके साथ कत्लेआम और जो उनका हाल करा था, और आज उन्हीं के इशारों पर ये लोग ये सब कर रहे हैं. लुक एट द आयरनी, लुक एट द सैवेज आयरनी ऑफ द एंटायर थिंग. जो लोग आपके रियली आपके चिंतित हैं आपके लिए, चाहे वो आप वीआईपी कंस्टिट्यूंसी हो या दूसरे फार्मर्स हो, उनको आप गाली दे रहे हैं. और जिन लोगों ने आपको इन द पास्ट और प्रेजेंटली ऑल्सो जो आपको सता रहे हैं, जो आपका भविष्य का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उनके साथ हां में हां मिलाकर आप लोग ये सब कर रहे हैं. लुक एट द आयरनी ऑफ द थिंग. बट द क्वेश्चन विच आई वांट टू लीव यू विद इज अ लार्जर क्वेश्चन. व्हाई इज दिस हैपनिंग अगेन एंड अगेन? And I suspect somewhere, and this is my theory, I could be totally wrong about it, it has something to do with the drug culture, unfortunately, of Punjab. How do you feed this drug culture? Where do you get the money for this drug culture? और मैं आपको ये, मेरे पास statistics तो नहीं है, records नहीं है अभी, but I can tell you, and research will show this. A significant portion of these young, rich, VIP constituency farmers, a lot of them are into this drugs and they need money for this. तो पैसा जब आपको चाहिए, जब पैसा आपको, देखिए चाहे आप घर में आपने BMW रखी हुई है या मर्सिडीज रखी हुई है, मगर इनकम तो आपको एक पर्टिकुलर इनकम, फार्मिंग ग्रोज एट द मोस्ट बाय मैक्सिमम 2.5% ग्रोथ इन द कंट्री, एंड नोवेयर इन द वर्ल्ड इट ग्रोज बियॉन्ड दैट. तो फार्मिंग इज नॉट IT की, जो कि वो मतलब इट कैन ग्रो एट 7%, 10% और वट एवर. तो फार्मिंग की एक पर्टिकुलर इनकम, चाहे आपका छोटा पट्टा है लैंड का या आपकी बहुत एकरेज है, बड़ी है, जो भी है, मतलब इनकम उतनी ही आपकी रहेगी. अब आपको पैसे चाहिए और पैसे चाहिए, क्योंकि आपकी एक ड्रग हैबिट बन गई है, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो आप पैसा, फिर देन आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है कि यहाँ से पैसे खींचो, यहाँ से पैसे खींचो. दैट इज वाई द बैकबोन, द यंगस्टर्स, who have been completely misled, who have got into this bad habit of drugs, they need money. And that is why these agitations are flaring up again and again, because and I don't have to say this, listen to social media, look at some of the vox pop, we call it vox pop, or the reactions which are coming from all these people, the kind of language, the kind of filth, the kind of name calling they are doing, the separatist slogans which they are raising, and at the back of it is a drug habit, unfortunately. And it is so sad, because this was a state which was right on top, literally पंजाब जिसे कहते हैं, वहां पर उस ऊंचाई पे था, और वहां से गिरता गिरता पता नहीं कहां चला गया. ऑल बिकॉज, क्योंकि ये हम लोगों की, ये हमारी गलती है. मैं इन लोगों को भी इतना नहीं ब्लेम करता, क्योंकि हम लोगों ने ये बोल बोल के अन्नदाता अन्नदाता, जय जवान जय किसान और ये सब कि, एंड सबके जैसे कहते हैं कि हम तो पता नहीं क्या चीज़ हैं, हम कहाँ से आसमान से उतरे हैं, और हम जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे हम बोल सकते हैं, एंड वी कैन गेट अवे विद एनीथिंग.
And that is why we have come to this state of affairs today, which is so sad, which is so terrible. But something now must be done about it. We have to confront with the truth. We have to confront with the reality. These are people who are wasteful people. These are people who do not appreciate what they have got in their life. They want more and more and more. It will never stop. We have to put an end to this. These negotiations have to stop, and these farmers have to be sent back to earn a honest living. You cannot bleed the Indian state. You cannot bleed the taxpayer, people like me who are paying taxes, to fund their habits, to fund their profligate lifestyles. We cannot do that. It has to end. And so, on this note, I come to the end of this episode of the CAA show. I hope you really enjoyed this episode. Thanks for watching. And of course, please do subscribe. You have that red button on your screen. Press that button. Join in. I will keep bringing you different, interesting perspectives on the hot button issues of the day. Goodbye and cheers.